Hello children, how are you all? Hope you are all fine. Once again welcome to English video. This time we are going to discuss poem number 10, that is The Railway Junction. First of all, we may discuss about the poet, that is Walter de la Mare. The name of the poet is Walter de la Mare. He was born in 1873 till 1956. He was an English poet, very renowned poet, Walter de la Mare, short story writer and novelist, best remembered for his work for children. So I want to share with you some of his works. See, this is the poet Walter de la Mare. Walter de la Mare spent most of his life writing stories and poems, mostly for children. His first book of poems, called Songs of Childhood, in 1902. The main theme he wrote about were romance and nature, and his style was simple. The mysteries of magic, the moonlight and quietness fascinated him greatly. These subjects are introduced in most of his poem. Mysteries, magic, moonlight, quietness fascinated him greatly. So these subjects are introduced in most of his poem. Now we are discussing one of his poem, The Railway Junction. Junction is in this poem referred to as destination. दोस्तों जंक्शन में आने के बाद क्या होता है कि जंक्शन में आने के बाद अपन 2-3 लाइन खुलती है, एक अलग दिशा में है, दूसरी अलग दिशा में जाती है, 2-3 लाइनें खुलती है जब अपन जंक्शन में जाते हैं तब। तो इसी तरीके से कुछ लाइफ के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की है वॉल्टर de la Mare ने। तो रेलवे जंक्शन is a poem which signifies the journey of life, that the poem contemplates across the road through the tunnel. The stillness and peace is expressed in the poem means destination. मीन्स इन्होंने अपने पोएम में टनल के थ्रू, स्टिलनेस के थ्रू, पीस के थ्रू, म्हणजे लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो स्टिलनेस का मतलब कभी लाइफ में अपन कभी कभी बहुत देर तक आगे नहीं बढ़ते हैं। टनल मतलब बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। ग्लूमी मतलब भी बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो लेट मी टेक द ग्लॉसरी। एक्चुअली आई फॉरगॉट टू टेक द ग्लॉसरी. Let me take the glossary first. Glossary part is very important. Then again we will come to this part. What to say? Poem part. Yes, glossary first is gloom. Gloom means sadness. Gloom का मतलब होता है दुखी. Folks to divided into two. जैसे फाटे फूटते हैं ना, जंक्शन में 2-3 ट्रेनें एक साथ जा सकती है। तो हर एक ट्रेन का डेस्टिनेशन अलग रहता है। कहने का मतलब हर एक इंसान डेस्टिनेशन अलग अलग पे पहुंचता है। कोई टीचर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कभी कभी कोई कुछ नहीं बनता है। तो फिर वो अलग अलग डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो हर डेस्टिनेशन में खुशी मिलती है ऐसा अपन बोल नहीं सकते हैं। तो वही इसके बारे में ही ये पोएम है। अपॉइंटेड मीन्स प्री डिटरमिन्ड। प्री डिटरमिन म्हणजे पहले से ही अंदाज़ा लगाना। गॉन्ट, थिन एंड बोनी, शुक्लकड़ा बोलते ना अपन जिसको, बहुत ही हड्डी दिखती जिसकी। गेम कीपर, पर्सन अपॉइंटेड टू कीप वॉच ओवर एस्टेट, पार्क और जू, इसको गेम कीपर बोला है इस पोएम में। डिस्क्रीट म्हणजे सेक्रेटिव। सेक्रेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सार को ले लेना। सेक्रेटिव म्हणजे किसी भी चीज़ के सार को ले लेना। इसका मतलब होता है कि निचोड़ लेना। जैसे अपन गन्ने को निचोड़ के रस निकालते हैं ना, दैट इज़ सेक्रेटिव। म्यूट का मतलब होता है साइलेंट।
nocturnal, active at night. Owl is a nocturnal animal, bat is a nocturnal animal, है ना examples. तो nocturnal का मतलब होता है active at night. era का मतलब होता है before. Use these words in sentences of your own. Gloom means sadness. When my friend's father expired, she was in gloom. ऐसे. या फिर when one of my relative expired, I was in gloom. Forks, to divide into two. In junction, the railway paths are divided into more than two. Fork म्हणजे fork अपन डालते हैं तो कोई भी चीज़ के दो टुकड़े होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है divided into two. Appointed, predetermined. I predetermined about the guests that they may stay today. मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि गेस्ट आज रात को रुकेंगे. अब बाकी के जो है आपको ऑन योर ओन बनाने हैं, और ये भी ओन मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं डेट वाइज डाल के आपको बनाना है बच्चों. यू विल बी रिसीविंग द वीडियो ऑन 2/12. तो यू हैव टू पुट द नेम ऑफ द पोएम, रेलवे जंक्शन. पॉसिबली राइट द पोएम नीटली इन योर फेसबुक. फेसबुक में पोएम नीटली लिखना है वही डेट को, और उसके बाद ग्लोसरी आपको बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है दोस्तों. उसके बाद यूज़ दिस वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस भी करना है. उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द पोएम. देखते हैं पोएट ने अपने लिए क्या रखा है इस पोएम. ओके, द पोएट इज़ वॉल्टर डी ला मेर. मैंने आपको पोएट के बारे में इंट्रो करवा दिया. वो क्या क्या लिखते हैं, किस विषय पे लिखते हैं, कौन सी चीज़ें उनको फैसिनेट करती है, ये सब चीज़ें अपने को बता दिया. What do you see when waiting at the bus station or at a railway station? अपन बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पे वेट करते हैं तो क्या देखते हैं. From here through tunneled gloom the track forks into two, and one of these wheels onwards into the darkening hill and one towards the distant sea. म्हणजे यहाँ से जब आप जाते हो तो दो रास्ते फूटते हैं. एक तो डार्कनिंग हिल की तरफ जाता है और दूसरा डिस्टेंट सी. डार्कनिंग हिल्स का मतलब होता है कि क्या होता है, इसका मतलब होता है डार्क फ्यूचर. फ्यूचर डार्क है. अगर आपकी जर्नी, आपकी लाइफ की जर्नी डार्कनिंग हिल की तरफ जा रही है तो इसका मतलब आपका फ्यूचर डार्क है, मतलब अंधेरे में हुआ. और वही अगर वन टूवर्ड्स डिस्टेंट सी म्हणजे होपफुल फ्यूचर, होपफुली कुछ बन जाएगा. ऐसे दो रास्ते जीवन में रहते हैं. कहने का मतलब पोएम को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है वॉल्टर डी ला मेर ने. तो जीवन में भी दो रास्ते मिलते हैं. कभी कभी एक रास्ता ऐसा होता है जिसमें बहुत सारा दुख होता है और दूसरा रास्ता होपफुली अच्छा होता है. ओके, अपन वी विल सी अबाउट सेकेंड पैराग्राफ. हाउ स्टिल इट इज़ द सिग्नल लाइट एट द सेट ऑफ सनशाइन पेलली ग्रीन. अ थ्रश सिंग्स अदर साउंड्स देर इज नन नॉर ट्रैवलर टू बी सीन. कभी कभी जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे ट्रेन आती है तो बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है. वही ट्रेन अगर जंक्शन छोड़ के चली जाती है जब अपन अलोन हो जाते हैं. कहने का मतलब है जब अपने पास सब कुछ रहता है तो बहुत लोग अपने से मिलने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग अपने रिलेटिव बनते हैं. लेकिन जैसे ही अपने जीवन की शाम ढलने लगती है, कहने का मतलब अपने पास कुछ नहीं रहता है या फिर बुढ़ापा आ जाता है. एट द सेट ऑफ सनशाइन्स पेलली ग्रीन अ थ्रश सिंग्स अदर साउंड्स देर इज़ नन नॉट ट्रैवलर टू बी सीन. जैसे अपन बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं लाइफ में, तब अपने पास संख्या लोगों की कम होते जाती है. जैसे when we are young, when we do a lot of work, when we earn a money, lot of people come to us, they talk to us, they live with us, and whenever we are at the sunshine of our sunset of our life,
सनसेट, लाइफ का सनसेट मतलब बुढ़ापा। तो ऐसा पर्सोनिफाई बहुत अच्छे से किया है इन्होंने पोएम को। चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न द हाउ टू पर्सोनिफाई, म्हणजे सनसेट को बुढ़ापा बताया है। जैसे बुढ़ापा आता है तो नो ट्रैवलर सीन, म्हणजे ज़्यादा लोग अपने पास दिखते नहीं हैं। Where late there was a throng, and now in peace a while I sit alone, though soon at the appointed hour I shall myself be gone. At the appointed hour म्हणजे प्रीडिटरमिन, म्हणजे मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, म्हणजे ज़्यादा उम्र मेरी हो गई है। एंड नाउ इन पीस अ वाइल, म्हणजे अभी आई सिट अलोन, अभी मैं जिंदगी की भगदड़ में से शांति से बैठा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं जब भी 11th आवर में मैं जाने वाला हूँ, म्हणजे मेरा समय तय है, मैं कब जाऊँगा ये मेरा समय तय है। आई शैल माई सेल्फ बी गॉन, म्हणजे मैं जब भी मेरा समय आएगा, यमदूत मुझे लेने आएगा, तब मैं चला जाऊँगा। But not their way, the bow-legged groom, the parson in black, the widow and son, the sailor with his cage, the gaunt gamekeeper with his gun, the fair one too discreetly wheeled, all who so mutely came and went, will reach those for nocturnal hills or shores ere night is spent. म्हणजे मैं जब भी मैं जाऊंगा इस दुनिया में से, तो शायद हो सकता है मैं दूसरे लोगों के रास्ते पे ना जाऊं। स्पीकर वांट टू रिफ्लेक्ट दैट ही डजंट वांट टू फॉलो अदर्स, म्हणजे लाइफ में मुझे दूसरों को फॉलो करना ही नहीं है। जैसे कि बो लेग्ड ग्रूम, पर्सन इन ब्लैक, विडो एंड सन, जैसे दूसरे लोग जाते हैं। जैसे कि कोई सेलर विथ हिज केज, द गॉन्ट, गॉन्ट का मतलब आपको बताया था दोस्तों, गॉन्ट का मतलब होता है थिन एंड बोनी। गेम कीपर विथ इस गन, जैसे भी है, जो जो दूसरे रास्ते पे गए, मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है उनकी मंजिल फार नॉक्टर्नल हिल्स, नॉक्टर्नल हिल्स म्हणजे रात में जो एनिमल्स एक्टिव रहते हैं, म्हणजे वो रात म्हणजे अंधेरा, हो सकता है वो अंधेरे की तरफ गए हो, और शोर या फिर किनारे पहुंच गए हो समय होने के पहले। इर द नाइट इज स्पेंट, नाइट इज स्पेंट म्हणजे रात ढलने के पहले, म्हणजे परिस्थिति बिगड़ने के पहले, आप जैसे कि परिस्थिति बिगड़ने के पहले ही अपने संभल जाना, ऐसे कहने का मतलब ये है। आई नथिंग नो वाई दस वी मेट, देयर थॉट्स, देयर लॉन्गिंग्स, होप्स, देयर फेट, एंड वॉट शैल आई रिमेंबर एक्सेप्ट द इवनिंग ग्रोइंग लेट। मुझे कुछ भी पता नहीं है कि हम लोग सब क्यों मिले हैं। उनके थॉट्स, उनके लॉन्गिंग, म्हणजे लॉन्गिंग का मतलब होता है डिज़ायर, होप्स आशा, देयर फेट, फेट का मतलब होता है लक, एंड वॉट, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उनके थॉट्स क्या है, उनकी डिज़ायर क्या है, उनकी होप्स क्या है, उनका लक क्या है। तो क्या मैं याद रखूँगा, सिर्फ यही कि इवनिंग ग्रोइंग लेट, मेरी जो इवनिंग हुई है वो बहुत लेट हुई है, मुझे मैं बहुत साल तक जिया हूँ। दैट हियर थ्रू द टनल्ड ग्रूम द टार्क ट्रैक फोक्स इनटू टू ऑफ दिस वन, अगेन वही बोल रहे हैं वो कि बस यहाँ से दो फाटे फूटते हैं, एक डार्कनिंग हिल्स, मतलब एक डार्क फ्यूचर है, एक ब्राइट फ्यूचर है। कहने का मतलब है लाइफ जंक्शन के जैसे है, लाइफ इज लाइक अ डेस्टिनेशन, यू कैन गेट टू वेज लाइक जंक्शन, वन ट्रेन गोज टूवर्ड्स डार्कनिंग हिल एंड अदर ट्रेन मूव्स टूवर्ड्स डिस्टेंट सी विंस ब्राइट फ्यूचर। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको ये पोएम समझ में आ गई है, तो आप वॉल्टर ला डी मेयर को ज़रूर याद रखिएगा। और आप जो पोएम आपने पढ़ी है रेलवे जंक्शन, ये इन्होंने ही लिखी है। हिज वर्क्स आर वेरी बेस्ट। सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर।
Where does the train ahead for from here? Where does the train head for from here? For from here, where does the train head? The train may head toward darkening hills or toward distant seas. है ना? Where is the poem waiting? The poet is waiting at the junction. What are the sounds that poet hears while waiting? The sound that poet hears while waiting are कौन से sound है? Gloom the track, folks into two. कौन से sound है poem में? बताइए. नहीं आता, बच्चों को नहीं आता. तो what are the sound that poet hears while waiting? तो किसके साउंड सुनता है poet? While I am waiting, signal light at the sunshine palely green, a thrush sings. ये साउंड and other sounds there is none. सिर्फ और सिर्फ थ्रश थिंग्स का साउंड सुनाई आता है, बाकी कुछ भी साउंड सुनाई नहीं आता है. मैच द कॉलम. द ग्रूम का मतलब होता है क्या? ग्रूम इज ग्लूम. ग्रूम है इधर, ग्लूम नहीं है. ग्रूम इज डिफरेंट एंड ग्लूम इज डिफरेंट. द पर्सन ब्लैक. द गेमकीपर कैसा था? विथ हिज गन. मीन्स ही वॉज गेमकीपर. सेलर जो था वो गॉन्ट था. फेयर वन व्हील्ड. फेयर वन डिस्क्रीटली व्हील्ड. फेयर वन व्हील्ड. ओके. सेलर. हाँ. द ग्रूम बो लेग्ड. ग्रूम क्या आता है? बट नॉट देयर वे बो लेग्ड ग्रूम. तो आपको दोस्तों मैच ऐसे करना है. 1 का D, 2 का A, गेम कीपर का व्हील्ड ही आएगा ना. गेम कीपर विथ हिज गन. फेयर वन टू सीक्रेटली व्हील्ड. हाँ. गेम कीपर. थर्ड का C, थर्ड का गेम कीपर विथ हिज गन. गॉन्ट. सेलर का गॉन्ट आएगा क्या? हाँ. यस. गेम कीपर विथ हिज गन. द फेयर वन टू डिस्क्रीटली वेल्ड. फेयर वन का वेल्ड आएगा. 4 का C. देखो 1 का क्या आएगा? बोलिए जल्दी से. द ग्रूम बो लेग्ड. D आएगा. द पर्सन ब्लैक म्हणजे A आएगा. 4 का C. 5 का सेलर विथ अ केज. तो कौन सा बचा अभी? द गेम कीपर. बो लेग तो ग्रूम है ना. गॉन्ट. गेम कीपर गॉन्ट बचेगा. C. 1 D, second A, third B, fourth C. Sailor with a cage. Sailor with a cage. फिफ्थ का 50 रहेगा. Confusion was for that only. Okay. What does the poet say he knows all about these people? The poet says that all these people will reach for nocturnal hills or shores before the night is spent. Here means before. Before the night is spent, they will either reach to nocturnal hill or they will reach to the shores. Okay. Why will the poet not remember anything about these people? Because the poet want to move in different direction.
because the poet wants to move in different direction, so he doesn't want to remember all these people. Do you think poet is very observant? How do you know? Yes, we think poet is very observant because he is saying that I nothing know why thus we met, their thoughts, their longings, hopes, their fate. Means all are different. So only we can say that the poet is observant. Now read the poem carefully. Choose the correct answer from the option given below. From here the dash distant sea. From here, what has been described as gloom? What has been described as gloom? Track. Isn't it? Track, gloom track. Where do these track lead to? Hills and seas. दोनों पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको टिक करना पड़ेगा. Where late myself be gone. Where late, what does throng refer to? Throng refer to the where myself, that through the gloom the track. Throng. I have to search for throng. Thrush. Throng refers to crowd. Whom does myself refer to? Myself refers to the poet. Where will the poet be gone? To his destination. Okay. So we will discuss rest of the things in the next video. Oh, many are remaining. I nothing know growing late. Who do I and we refer to? Game the poet and fellow passengers. What will the poet remember? Nothing. Okay. Okay, then we will discuss the writings in our next